So, without delaying, I would love to introduce our speaker, Mr. Dheeraj Sharma ji, who is a senior consultant, senior software consultant, ERP consultant, moreover, I can say from QRNet Solutions with 20 plus years of experience into implementation of multiple ERP systems, whether it could be SAP or any other bigger giants, I can say. So he has led multiple leading digital transformations, and he has also expertise in channel distribution networks and also in strategic marketing expansion. So he has been recognized as a value driven I can say a corporate operational vulnerabilities and experience with a high impact, I can say. And he has been associated with Tally for last 11 years earlier, and currently he is working in QRNet for I can say like almost 8 years, if I'm not wrong. So hearty welcome to you, Dheeraj ji, for today's webinar. Thank you very much, Karthik, for your lovely introduction. Uh, and Yes. give me the opportunity to address this platform. And I appreciate also your initiative, because if you talk about that mid-size manufacturer, so they really need such type of discussions, so that they can take help out of it, and they can use the right technology for their organization, for their factories. Yes. So without delaying much for the topic today, I will jump directly onto the webinar. So to start with, maybe uh, Dheeraj ji, like I wanted to understand what do you feel is the biggest challenge today the mid-sized manufacturing industries are facing? Because to compete with a bigger manufacturing industries, first we have to identify the challenges, because until or unless we overcome our challenge, we won't be able to compete with the bigger manufacturing industries or a bigger giants. So what do Yes. you feel today is a bigger challenge which the current MSMEs or the smaller organizations are facing? What do you feel? So if we talk about the production organization, so the production organization, or a organization who produce something, so it is a bundle of departments. So we are not talking about the single department, because if the all departments will uh, take the speed, then they can achieve the organization goal. So डिपार्टमेंट में जो मेनली एज फार मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, तो इन्वेंट्री इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. प्रोडक्शन प्लानिंग, इसको हम ले सकते हैं. अब देन अगर हम आगे आगे बात करते हैं, क्यूसी है, एससीएम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और अब कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोग अडॉप्ट करते हैं. अगर हम नटशेल में बात करें, वन बाई वन इसको लें. इन्वेंट्री इन्वेंट्री वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इन्वेंट्री में देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेंट्री which can be raw material, semi finished good, scrap material. So there is very much difficulty to recognize it, and the location where they are actually lie in the factory. So रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, तो कार्तिक जी, कि मेरे पास अगर लार्ज इन्वेंट्री है, जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, या जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जहाँ पर लार्ज इन्वेंट्री रहता है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट इन्वेंट्री अगर का होल्ड है, मेरे एनालिसिस में है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ मिसिंग मिसिंग देखी गई है, और वो लोग इससे बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं. इवन दे टेक द लॉस आउट ऑफ इट ऑल्सो. एक मैं रियल टाइम ऐसा सिनेरियो आपको बताता हूँ, कि ऑर्डर सामने रखा था, है ना, उनको कुछ आइटम प्रिक्योर करने थे, उन्होंने आइटम प्रिक्योर किए, लेकिन फिर बाद में देखा वो आइटम, वो रॉ मटेरियल
उनके ही गोडाउन में नीचे दबा हुआ है ना। तो एक तरह से अगर हम इस तरह से इन्वेंट्री प्रिक्योर प्रिक्योर करते हैं विच इज ऑलरेडी लाई इन द वेयर हाउस, सो इट इम्पैक्ट द प्रॉफिट ऑफ अवर ऑन दैट ऑर्डर, है ना। तो उसमें प्रॉफिट भी हम लूज करते हैं। प्रोडक्शन पे आते हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग इज द मेन मेन क्रूशियल पार्ट। अगर प्लानिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि हर एक ऑर्डर के साथ उसकी टाइमलाइन भी होती है डिलीवरी की, तो मुझे प्लानिंग में ही ये सब देखना पड़ता है कि मेरे पास कितना इन्वेंट्री है, कितना इन्वेंट्री शॉर्ट है, और कितना मुझे लीड टाइम कितना कितना है मेरा उसका। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आइटम दूर से आना है, फॉर एग्जांपल आसाम से आना है, तो इट विल टेक मोर टाइम इफ आई टेक द लोकल लोकल वेंडर। तो लीड टाइम का मुझे पता होना चाहिए, सो दैट आई कैन डिलीवर माय ऑर्डर ऑन ऑन द टाइम। करेक्ट। तो जबकि मिड साइज में ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा एब्सेंस होता है। और जो अर्जेंट ऑर्डर है तो सारी की सारी कंपनी, सारा का सारा प्रोडक्शन यूनिट उस अर्जेंट ऑर्डर को फुलफिल करने में लग जाती है, जबकि दूसरे भी ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो एनालिसिस है, आपकी प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो मेन जो मुझे मुझे लगता है दो दो फैक्टर हैं, एक तो इन्वेंट्री कंट्रोल और प्रोडक्शन प्लानिंग। So inventory control and production planning. Seriously, that's a greater perspective, Dheeraj ji. Even I echo with you, because until or unless these inventory is being streamlined, nothing can be done. Yes, I have also seen a lot of business units, just because, I mean, they failed just because of proper management, improper management, I can say. They don't maintain a proper stock or anything else that comes into picture. That's great. So what do you feel like, Dheeraj ji? I mean to say, like, still there are organizations which are using some technologies, maybe the mid-size organizations, but even though still they fail in. But why? Why do you feel, even though they are using some technology or some softwares, why do you feel they still fail? अ, आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, टेक्नोलॉजी तो कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं मिड साइज, लेकिन आप देखें वो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं क्या? आज आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है ना। आजकल Correct. हम लोग एआई की बात बात करते हैं। तो आप जैसे चेंजेस टेक्नोलॉजी में चेंजेस इनविटेबल है ना। जैसे आपको याद होगा, पहले लोग डॉस में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बना देते, फिर वीवी में आए, फिर उसके बाद अब ये पाइथन और सी में जावा आए, पर बनते जावा हैं, में सी में आए। बने। तो या क्या है ना, अगर आप आज भी डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, है ना, तो इट विल स्लो योर प्रोसेस, इट विल इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ योर मैन पावर। करेक्ट। और जो आज की आपकी नीड है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो हमें करेक्ट। ये देखना है कि हाँ, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या मेरा जो विजन है, मेरा जो गोल है, उसको अचीव करने में वो हेल्पफुल है, और इट इज ऑब्स्टेकल टू अचीव माई गोल। तो करेक्ट। है ना। तो ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस तरह की मिड साइज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, है ना, वो बेयर मिनिमम जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मुझे अगर बिलिंग करना है तो बिलिंग का वो रखते हैं। गवर्नमेंट का कंप्लायंसेस है, ई वे बिल, इनवाइस, उसके लिए रखेंगे। लेकिन ये तो गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस हो गए, है ना। लेकिन आपको अपनी फैक्ट्री को रन करने के लिए, आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन करने के लिए कौन कौन से स्मार्ट एप्लीकेशन, कौन कौन से स्मार्ट सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सो दैट दे कैन एनालाइज योर रिक्वायरमेंट ऑन टाइम, एज वी टॉक अबाउट द इन्वेंटरी प्रोडक्शन प्लानिंग, so that you can deliver the order on time and create a good image in market. तो करेक्ट। टेक्नोलॉजी का भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो आज की टेक्नोलॉजी है वो यूज करनी चाहिए। एंड धीरज जी, जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर जस्ट कंपेयरिंग विद द थिंग्स, सो डोंट यू फील कि ये टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत डिपार्टमेंट्स के लिए फिक्स हो गया है? यदि देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम इज रन ऑन सम सॉफ्टवेयर,
warehouse is running on some software. Even though they are adopting the technology, I don't feel they are connected. What do you say? ऐसा मोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में देखा गया है कि हाँ, आपके पास अकाउंटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रोडक्शन के लिए अलग है, वेयर हाउस के लिए आप अलग करते हो। अगर आपका लीड्स वगैरह आता है तो उसके लिए लीड मैनेजमेंट के लिए अलग रहता है। तो इसमें क्या है कि अगर जब तक सारे डिपार्टमेंट, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर सारे डिपार्टमेंट सिंक होकर नहीं चलेंगे, है ना, तब तक हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसमें अगर आपको MIS एनालिसिस करना है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको ये टाइम टेकिंग जॉब रहता है ना। तो आज अगर मुझे एक फैक्ट्री को सक्सेसफुली रन करना है, तो मुझे ये सारे डिपार्टमेंट जो है उनको मुझे एक सिंगल कोई एप्लीकेशन पर रन करना पड़ेगा, ताकि उसमें नेविगेशन में भी मुझे मुझे आसानी रहे, और सारा मुझे MIS का जो एनालिसिस मुझे मुझे करना है, जो मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेटा चाहिए, एनालिटिक्स रिपोर्ट्स चाहिए, वो मुझे सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो पाए। Perfect, sir. So, to make this webinar more interactive, let me put some questions to the audience. It's not a question, maybe some poll, and let's try to understand what is the audience pulse on it. So, yes, over to the audience. There is a poll on your screen. So, what is the biggest operational challenges do you find in your business today? Is it production planning and scheduling, or inventory visibility and accuracy, or is it due to operational costs, or is it due to a manual process and lack of automation? So, yes, audience, it's on you now. I request you to give your poll. And Dheerajji, we are getting a very good number of polls, and everyone are correlating that to inventory visibility and accuracy. As of now, 100% everyone have been, I mean, given their poll in the inventory. People are in line with our webinar today. Yes, I can see all the people, like more than 60% of the people has given inventory visibility and accuracy. So आपको यस। क्या लगता है धीरज जी? Do you even find the same, or you align with them or dislike with them? What यस, do you हंड्रेड feel? 100% अलाइन। जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे कि Yes, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी क्रूशियल पार्ट। मैं I have come across hundreds of manufacturing organizations, and most of it they are facing problem with the inventory. So first and foremost, the part of resolution to streamline their inventory, जैसे मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि ऑर्डर्स बैक टू बैक ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं, है ना। तो उसमें आपके पास इन्वेंट्री की कैटेगरीज अलग हैं, ब्रांड अलग हैं, क्वालिटी अलग अलग है। तो उस सबको आपको डिस्टिंग्विश भी करना है, और आपको प्लेसिंग भी उनको करना है ना। तो आपके पास जब तक एक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन नहीं होगा जिसमें आप क्लियरली विजिबल हो पाए कि हाँ, कौन से कैटेगरी, कौन सा तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, और कितना आपको प्रोक्योर करने की जरूरत है, तो वो आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको इसमें हेल्प कर सकता है। perfect. So I'm just ending the poll. Thank you everyone who has given your valuable answers. Let's get into the poll once again. Sorry, to the webinar, back to the webinar. So without delaying much, we have understood the major core ethical concept of why are we finding this, or what are the biggest challenges that we are coming in the mid-size manufacturing. We have seen, we have got a valuable insights from Dheeraj. So now let us understand. So competing with larger manufacturing, how mid-size industry or a mid-size organization should work or should see. So, Dheeraj, what is your opinion? So, how can a mid-size uh,
industry or a manufacturing unit can compete with larger manufacturing? What is your opinion? मिड साइज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, उनको अगर बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ compete करना है ना, तो उनके जैसे उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया हुआ है, क्या प्रोसेस किया हुआ है, उसके उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल पर वो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज आप देखो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, वो आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट फर्स्ट दे दैट टाइम दे वर स्टार्टेड, दे वर नॉट सो बिग। तो Correct. उन्होंने उस समय उनका गोल गोल क्लियर था कि हाँ हमें इतना बड़ा बनना है, 1,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का, है ना। और उसमें वो धीरे 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 उन्होंने बड़े गोल को अपने छोटे गोल में कन्वर्ट किया और धीरे धीरे उसको उसको अचीव किया। जैसे इंग्लिश का सेइंग भी है कि रोम बिल्ड्स नॉट इन ए डे, इट बिल्ड्स डे बाय डे। तो आपको रोज कुछ ना कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए उसमें आपको एफर्ट एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, है ना, स्किल स्किल मैन पावर की, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की। जैसे आज आपका अगर आपका आज एक ब्रांच ऑफिस है या एक एक फैक्ट्री है, तो हो सकता है आप उसको एक लेवल पर आप उसको मैनेज कर पाए, लेकिन बट अगर आपका लार्जर गोल है कि आई I have multiple branches or multiple production unit. So manage of all these multiple branches or manufacturing unit, you must have some system. You must have some software application who has them to manage it. So So, Dheeraj so ji, by your points, can I understand primarily two things? One is a software and other is a process. Are these two things makes difference for a smaller manufacturing unit to compare with a larger manufacturing unit? हाँ, सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकता है प्रोसेस अडॉप्ट करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि हाँ, सॉफ्टवेयर में आपका जो प्रोसेस है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो तो सॉफ्टवेयर आपको होल्ड कर देता है, रोक देता है। तो सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू टू फॉलो योर प्रोसेस। तो एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सॉफ्टवेयर हमें आपके प्रोसेस को एडहेयर करने में हेल्प करता है। So when you talk about process, how about organizational disciplines comes into picture, or I can say how much weight can the organizational discipline matters? Because आपने पहले ये भी बताया कि जो कंपनी लार्जर मैन्युफैक्चरिंग है वो एक ही दिन में नहीं हुआ है. इट बिल्ट ऑन डे एंड डे by adopting few technologies, processes, disciplines. So when you talk about discipline, especially manufacturing unit में, what sort of a discipline are you expecting? इसमें जो सबसे पहला है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि हाँ, इन्वेंट्री इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया या फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग हो गया। तो इसमें हमें जो भी प्रोसेस बने हुए हैं, है ना, उसको हमें अडयर करना है। अब जैसे हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इंडिया में फीफो मेथड चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो हमें उसको फिजिकली भी हमें उसको Adopt प्रोसेस में करना. लाना है ना। Hmm. तो हमें इस तरह से अपने इन्वेंट्री को अरेंज करना है ताकि हमें स्पेशली डिस्टिंग्विश हो कि हाँ, जो जो इन्वेंट्री पहले आई है उसको हमें पहले निकालना है। अदरवाइज क्या होगा, सारा इन्वेंट्री हौच पौच हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा मटेरियल कब आया था, है ना। तो ये जब तक आपके पास प्रोसेस नहीं होगा, आप ये चीज कर नहीं पाएंगे। मैंने कई फैक्ट्रीज में देखा है। तो वो क्योंकि आप अगर आप लार्ज वेयर हाउस को एज्यूम करो, तो उसमें वो अलग अलग पार्टीशंस बना बना देते हैं, है ना। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू बिल्ड मल्टीपल स्टोर्स। तो उसमें अलग अलग वो पार्टीशन पार्टीशन बना लेंगे, उसमें कैटेगरी वाइज आइटम्स को स्टॉक पर रखते हैं, सो दैट जब उनका कुछ प्रोडक्शन का ऑर्डर आता है
और उसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, सेमी फिनिश की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर उसको उनको वहां पर रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। इसी तरह तो से अब अगर हम या बताइए बताइए, गो हाँ, ऑन सर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। जो मैं मटेरियल इशू कर रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में होना चाहिए। जैसे हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर आता है, हम उसका वर्क ऑर्डर बनाते हैं, वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल इशू होता है। तो मटेरियल इशू करते समय क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि जो भी जिसको भी इशू हो रहा है वो स्पेसिफाई करके आए कि हाँ, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप ये मटेरियल इशू करवा रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अ, एक एक चीज और, इसमें जैसे हम लोग मशीनरी यूज करते हैं, तो मशीनरी यूज कर रहे हैं, मेरे पास मशीनरी का पूरी तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना उसकी कैपेसिटी अभी तक हम चोक हो गई है, कब उसका मेंटेनेंस अभी ड्यू है। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ऑर्डर ऑर्डर ले लिया है और और बीच बीच प्रोडक्शन में मेरी मशीन ब्रेक डाउन हो गया। तो इतने कम टाइम में, इतनी अर्जेंसी में, है ना, तो आपका ऑर्डर ऑर्डर क्या है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है और डिले, या फिर डिले हो सकता है। तो दोनों केसेस में इट क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर इमेज। तो ये हमें डिसिप्लिन्स फॉलो करने चाहिए वंस वंस वी आर रनिंग ए फैक्ट्री। And sir, based out of your experience, I'm very curious to understand how people are interested to adopt technologies. Because industry may you find all sort of people, right? So यस। how interested are there to adopt the new technology? What do you feel? अगर हम बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं, बिकॉज दे आर रनिंग द बिजनेसेस, है ना, और इतने कॉम्पिटिटिव एरा में वो लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट बिजनेस बना पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वांट टू टेक द अडॉप्ट द ऑटोमेशन, है ना। अ, कई जगह कुछ इस तरह से शो स्टॉपर्स आते हैं कि हाँ, बिजनेस ओनर या मैनेजमेंट तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो की पर्सन है, यूजर्स हैं, उनकी तरफ से रिजेक्शन आता है। अब मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर देखा गया है कि बहुत से लोग 10-10 साल पुराने, 15 साल से काम काम कर रहे हैं, तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है जो भी वो अभी यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन द मैनुअल प्रोसेस, सो दे रिलाई ऑन इट एंड दे फियर टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो फियर ऑफ फेलियर दे है, फियर ऑफ फेलियर, Correct. कि हाँ, अगर मैं आज ये नई नई टेक्नोलॉजी, नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर मैं अगर सर इसको अडॉप्ट करते हैं, तो मैं क्या इसको सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। सबसे पहली बात ये है ना। अगर मैंने इसको सीख लेता हूँ, है ना, तो दूसरी तरफ आता है कि इसमें फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ जाती है सर की, है ना, क्योंकि उसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, तो सर कभी भी पूछ सकते हैं किसी के भी बारे में। लेकिन अ, ऐसा मेरा ये मानना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप नई चीजें नई चीजें सीखते हो, है ना, तो उसमें आपकी नई स्किल्स आती है। एज ए इंडिविजुअल आपका भी ग्रोथ है। फैक्ट्री का तो ग्रोथ हो रहा है कि आपने ऑटोमेशन में आप आ गए, है ना, चीजें आप सिस्टमेटिक हो गई, प्रोसेस एडर हो गए। लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो ये आपका भी ग्रोथ है। ये आपके करियर में आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। So Dheeraj, can you tell me like one solution if I ask you इन सब challenges है या आपको compete करना है, तो this one solution every industry or every uh, organization has to adopt it, so what it would be? इसमें अगर आपको आज का प्रेजेंट का कंपटीशन को, आपको चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करना है ना, और आपको आगे बढ़ना है, और बिजनेस जायंट बनना है, तो आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट
करना पड़ेगा। यू मस्ट अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके गोल्स में आपके लिए हेल्प हेल्प करे, है ना। चाहे जो अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से पहले प्रिक्योरमेंट भी है ना, कि मुझे क्या क्या चीजें खरीदनी है, तो उसका भी मेरे पास एक सिस्टम अगर अगर मेरे पास है, तो मैं राइट थिंग्स को राइट टाइम पर मैं उसको खरीद खरीद पाऊंगा, है ना। दूसरा, इन्वेंट्री पे हमने काफी बात बात किया, है ना। दूसरी चीजें हैं, ह्यूमन कैपिटल है, जो हम इसकी बात करते हैं, थ्री पीस की, तो मैन मैन पावर का भी बहुत वाइटल रोल है। तो उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी करते हैं, उनका तो अप्रेजल्स हो गए, उनके करियर के डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो टाइम टू टाइम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकता है कि हाँ, किस एम्प्लॉय को कब आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, कब उनका डेवलपमेंट में कौन कौन से सेशंस की जरूरत है, या अ, अ, जैसे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करते हैं, तो हर एक के अपने केआरएस रहते हैं, जो सारे केआरएस मिलकर कंपनी के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो कौन कितना इफेक्टिवली कंपनी के गोल में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, अगर नहीं है तो हम उसके साथ अकॉर्डिंगली क्या इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर और दूसरे वेज में उनको हम कंपनी के गोल के साथ अलाइन कर सकते हैं। So in these sub technologies, so if you are mixing up, so what would be that one solution, one stand solution? What should we use? अब अगर आपको सारे, क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे डिविजन्स हैं, तो एक अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर आप अडॉप्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है, फ्रॉम, जैसे हम कहते हैं, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, पेमेंट तक का। क्योंकि जब तक सारे डिपार्टमेंट आपके सिंक नहीं होंगे, है ना, आपका केओस कम नहीं होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ बिजनेस ओनर से मैं बातचीत करता हूँ, है ना, दे हैव लॉट्स ऑफ टास्क टू डू, है ना। फैक्ट्रीज के टास्क हैं, बैंक के टास्क हैं, सीए से उनको मिलना है, ओडी पास करवानी है ना, बिजनेस बिजनेस मीटिंग्स हैं, तो इतने सारे उनके टास्क रहते हैं। तो ये अब ये, और अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर अपने पास नहीं होगा, तो क्या होता है, वो इन छोटी छोटी चीजों में ज्यादा 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 बिजी हो जाते हैं, रादर देन उनका टाइम ज्यादा 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 जाने चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। किस वेंडर से कितना कितना सामान खरीदना है, कब खरीदना है, किसकी कितनी पेमेंट आ गई है, ज्यादा ड्यू तो नहीं है। तो ये सब आप मैनुअली अगर आप करेंगे तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। लेकिन अगर यही चीज आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि हाँ, मैंने हर एक आइटम के साथ में हर एक वेंडर को मैंने अलाइन कर दिया है, उसके वेंडर की पेमेंट की टर्म्स भी मैंने सॉफ्टवेयर में अलाइन कर दी है, तो अब मुझे हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। सो बिजनेस ओनर के बार बार इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सो नाउ if they come with the software solution, ERP software solution, so they can save lots of time, and that uh, save time they can utilize it to grow your grow his business, his or Wonderful, her sir. business. Yeah, So wonderful. So ERP is a one-stop solution, is what you are finally helping the audience to get in so that they can compete with larger organization. So let's understand from the audience and let's have one more poll coming in. sure. So yes, the poll is on. So how are your manufacturing operations, if at all the audience are from the manufacturing industries? I wanted to understand how are the manufacturing operations managed today? So are they using any fully integrated ERP or multiple softwares or Excel spreadsheets or manual registers and paperwork? Yes, we are getting the answers. People are still relying. I'm shocked to see people are still relying on papers and manual registers, and people are still on Excels and spreadsheets. Oh my God. I request even the other participants to, yes, till now 50% has been answered. I request the next rest 50% also to answer.
सो धीरज जी, मुझे ये बताइए, मार्केट में ये भी एक माहौला चल रहा है कि देखो ईआरपी बहुत कॉस्टली है। ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना हमारी बस की बात नहीं है। वी आर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आप ईआरपी इतना बड़ा बड़ा टर्मिनोलॉजी लेके घूम रहे हो। सो व्हाट डू यू गिव सजेशन फॉर सच पीपल और सच इंडस्ट्रीज? हाँ कार्तिक, ये तो है कि ये इस तरह का परसेप्शन माइंड में रहता है बिजनेस ओनर के। इफ इफ दे थिंक अबाउट द ईआरपी, अभी तो हम सोचने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला आता है कि ईआरपी तो बहुत बहुत महंगी चीज है, हम तो इसको अफोर्ड नहीं नहीं कर पाएंगे, है ना। करेक्ट। है ना। रादर देन अगर मैं उसके बेनिफिट देखो, तो आ, तो सबसे पहले अगर हमें ईआरपी का अगर हम प्लान करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ईआरपी हैं, है ना। लोग इसलिए भी कंफ्यूज कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ईआरपी मेरे लिए अच्छा अच्छा रहेगा। तो उससे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपको अभी क्या आपको रिक्वायरमेंट है टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपने जो सोचा हुआ है, चाहे वो टर्नओवर वाइज है ना, या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर गोल है, तो आपका अभी क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, और आपका क्या बजट है ना। तो उसके बेस पर आप ईआरपी देखना स्टार्ट करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि ईआरपी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आजकल तो क्लाउड बेस्ड ईआरपी है ना। आप सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल है, आप उस पर भी SaaS जा सकते मॉडल। हैं, है ना। तो वो आपको सिंगल टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम टाइम भी मिलता है, और उसमें ट्रेनिंग भी लोग लोग करवाते हैं ना। जैसे पहले तो हम लोग सॉफ्टवेयर लोग देते थे, तो उसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता था। इसमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब बहुत सारे ईआरपी ऐसे हैं जिसमें सारी चीजें, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस उसमें रहती हैं। अगर हम सीआरएम की बात करें, जिसमें आपका लीड्स कैप्चर होती हैं, सेल्स टीम उसमें अपने लीड्स को फॉलो अप कर सकती है। आप देख सकते हैं कौन से टीम मेंबर के पास कितनी लीड्स हैं, क्या स्टेटस है उसका, है ना। इन्हें वन गो आप फिर उसको एनालाइज करके उनसे उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। आप अपना प्रोजेक्शन भी आप उसके बेस पे बना सकते हो कि आज इस इस महीने में या इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट होगा। सीआरएम से फिर हम अकाउंटिंग पर आते हैं। पूरा अकाउंटिंग फाइनेंस विद स्टेचुटरी कंप्लायंसेस, ई वे बिल, ई इनवाइस आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सब उसमें उसमें रहता है ना। और एचआरएमएस की अगर हम बात करें, एचआरएमएस हीरो सॉफ्टवेयर, जहाँ तो वो भी इसी में इन्वॉल्व रहता है। तो आपको फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू एंड सॉल्यूशन आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा, तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम आपका सेव करता है। So do you feel this time saving factors help ये मिड साइज इंडस्ट्री को compete करने में लार्ज साइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या अदर ऑर्गेनाइजेशन से compete करने के लिए time is one such crucial role, do you feel? And by implementing ERP, how even more better they can perform? क्या can you give some insights on that? टाइम का जैसे हमने पहले भी बात किया कि हाँ, अधिकतर अभी अभी जो मिड साइज में या एसएमएस की अगर हम बात करते हैं, ज्यादातर टाइम उनका ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जाता है ना। Correct. तो अगर ये टाइम वो सेव कर पाते हैं अपना ईआरपी के हेल्प से, तो ये जो उनका सेव टाइम है, ये फिर अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाने में, उसको एनालाइज करने में, टीम के साथ मीटिंग मीटिंग करने में, वो अपना यूटिलाइज यूटिलाइज कर सकते हैं। और डेफिनेटली 100% श्योर अबाउट इट, इफ दे save if they utilize their save time in this manner, of 100% they can grow their business। तो ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और और जहाँ तक मैन पावर की बात है, अगर वो एप्लीकेशंस को, ईआरपी एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से यूज करेंगे, तो उनकी भी एफिशिएंसी इसमें बढ़ेगी। क्योंकि मैनुअल जो उनका काम है, वो मैनुअल काम कम होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा, एफिशिएंसी
एफिशिएंसी बढ़ेगी, और टाइमली वो अपने जो भी उनका टास्क है वो उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो धीरज जी, इफ आई आस्क यू इन अ डिफरेंट वे, ईआरपी को पहले कौन सा डिपार्टमेंट अडॉप्ट करना है, या कौन सा डिपार्टमेंट के लिए सही है फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट टू स्टार्ट विथ? व्हाट डू यू सजेस्ट? हाँ, ईआरपी को आप फेस वाइज भी आप कर सकते हो, जो आपकी मोस्ट क्रूशियल रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हम बात करें, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, तो उनके लिए जो लीड्स हैं, सेल्स है, वो ज्यादा मैटर करती है, तो सीआरएम को कर सकते हैं। जैसे अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी क्रूशियल पार्ट। तो वो पहले इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए जो उसका इन्वेंट्री कंट्रोल का मॉड्यूल है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि फर्स्ट दे मैनेज देयर देयर इन्वेंट्री, सो दैट दे कैन यूटिलाइज इनटू द प्रोडक्शन मॉड्यूल। जब तक आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगी, आपका प्रोडक्शन उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा, है ना। तो दीज आर कनेक्टेड फील्ड। Correct. So if I ask you, if a company want to automate this their operations, okay, what three processes or three areas you will strictly suggest them to automate? ओके, तो इसमें इसमें हम अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए टॉप प्रायोरिटी डिपार्टमेंट। तो Hmm. मुझे अपना इन्वेंट्री मैनेज करना है, वेयर हाउस मैनेज मैनेज करना है, प्रोडक्शन मुझे मैनेज करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग जितना स्ट्रांग होगा, उतना 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 मेरा जो लैंडिंग कॉस्ट है वो मेरा कम से कम होगा। मैं अपनी वेस्टेज जितना जितना कम कर पाऊंगा, है ना, उतना उतना मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जितना कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा मशीन्स को मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा, उतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, है ना। तो मैं अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको मैं कितना मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर पाता हूँ, इसमें हमारा ईआरपी काम करता है ना। जैसे ईआरपी सबसे पहले तो जब मीटिंग स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सर ये ईआरपी है क्या। तो मैं उनका बोलता हूँ, सर ईआरपी हैज थ्री वर्ड, ERP। ई मीन्स एंटरप्राइज, आर फॉर रिसोर्सेज, पी फॉर प्लानिंग। तो आपके पास जितना रिसोर्सेज है, मैन मटेरियल मशीन्स, ये जितना भी है कैपिटल, तो आप इनको कितना अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हो, ये आपको ईआरपी इसमें हेल्प करता है। तो ईआरपी is a solution to grow in your business in, from scratch level to end level. So it's not a solution of a particular department, it's a solution for your entire organization. Perfect. So, sir, based out of your experience, can you tell me any such implementation what you have did, जो कि ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन के पहले कैसे था, ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के बाद कैसा था? Any such realistic example with stats or something if you have? ऐसे तो कार्तिक जी कई एग्जांपल्स हैं, कई कई एग्जांपल्स हैं जो Anyone for our audience. जो पहले मैनुअल या फिर लिमिटेड ऑटोमेशन के साथ यूज कर रहे थे, है ना। जैसे मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल एक बताता हूँ, है ना। किसी कस्टमर को, हमारे किसी क्लाइंट को पेमेंट करना था, लेकिन वो पेमेंट टाइमली हो नहीं पाया वेंडर का, है ना। तो वेंडर का फिर बिजनेस ओनर के पास फोन आता है कि सर, इतने दिनों से ये पेमेंट डिले है। तो उन्होंने फिर अपने अकाउंट्स पर्सन को बुलाया और पूछा इसका क्या रीज़न है, क्योंकि उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ इंडिकेशन या था ही नहीं। तो उन्होंने क्या Hmm. किया हुआ था, उन्होंने पीडीसी चेक रखे हुए थे उसके, है ना, क्योंकि वो पहले से साइन करके दे देते हैं जो भी पेमेंट होना है। लेकिन वो चूंकि सही तरह से अरेंज नहीं थे, है ना, वो कहीं किसी फाइल में लगे हुए थे, तो उस वजह से उनका वो पेमेंट मिस हो गया। इंटेंशनली उनका इस तरह से कोई इरादा नहीं था। तो हमने उनको फिर सॉफ्टवेयर हमने सजेस्ट किया, जहां पर वो इस तरह के पेमेंट के रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि किसकी कितनी पेमेंट ड्यू हो रही है। तो उस समय वो बहुत ही एशन एशन फील कर रहे थे, कह रहे थे धीरज जी, रियली मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे पेमेंट डिले करना है। मैंने इवन
यहाँ पर सारे चेक जो है मैं पीडीसी साइन करके जाता हूँ इन माय एब्सेंस। अगर कुछ ऐसा है तो पेमेंट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इट इट क्रिएट्स इमेज ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, रेपुटेशन की बात है। आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वेंट्री इज वेरी क्रूशियल पार्ट। तो करेक्ट। जब तक इन्वेंट्री मेरा मेरा मैनेज नहीं होगा, मेरे जो इससे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट हैं, है ना, प्रोडक्शन है, दूसरे हैं, तो जब तक इन्वेंट्री मेरा मैनेज नहीं होगा, दूसरे पार्ट भी इफेक्टिव रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर आर वेरी मच डिस्टर्ब टू विद दिस इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम्म। तो वो ज़्यादातर उनका करेक्ट। ईआरपी से भी एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि हाँ, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू गिव टू मैनेज द इन्वेंट्री। सर ये बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, इसको आप स्ट्रीमलाइन करो। Correct. You are right, sir. 100% you are right. So, more or less, Dinesh ji, you have given a valuable insights for us. Now, let's understand from the audience. Maybe any questions from the audience, it would be great. Dheeraj ji is here to answer your questions. So meanwhile, Dheeraj, audience come back with their questions. I would love to introduce a new session from this webinar. So every time we used to have a use case coming in, but today you have given us a realistic use cases that we will generally present in the PPT. So you have, based out of your experiences, you have given all your all your inputs and insights. So this time I'm pretty trying new. Uh, विल हैव अ रैपिड राउंड दिनेश जी, एक रैपिड राउंड लगाएंगे आपके लिए. ठीक है, So I'll ओके। quickly ask you few questions, and I'll expect some instant answers. Again, no thinking. So what comes in your mind first, I want that to be said over here. Okay, sir? ये मेरे लिए भी नया रहेगा। प्लीज 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 Yes, sir. स्टार्ट। Yes, wonderful. So your first rapid fire question, sir. Uh, so if I ask you, या uh, one process that every manufacturing unit should automate, what it would be? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Inventory management. Excellent. If I ask you one KPI every CEO or a CFO should monitor daily, what it would be? AR ARAP, sir. Very crucial thing for Account payables. Yeah, receivables and account payables. payables and account receivables. If they Excellent. if they you have the control over it, you can manage your business easily. Yes, at the end of the day, profit and loss matters Yes, until yes. or unless you have that, you can't move ahead. Wonderful. And one interesting rapid fire question. One mistake to avoid during ERP implementation. Too much of expectation. Please avoid too much of expectation from ERP in first phase. So first you try to sort out your की प्रोबलेमेटिक एरियाज, जो आपकी फर्स्ट प्रोबलेमेटिक एरियाज है, पहले आप उसका आप सॉल्यूशन लो। धीरे धीरे आप दूसरे फेसेस में आप जाओ। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, so it will go have that। जैसे अभी हम देखते हैं कि हाँ, लोगों ने लाखों रुपए तो ईआरपी पे दिए लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, इम्प्लीमेंटेशन उनका फेल हो गया। तो इसमें हमें प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, है ना, कि हाँ, हमें फर्स्ट फेज में हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, सेकंड प्रायोरिटीज़ क्या है, थर्ड प्रायोरिटीज़ क्या है। तो हमें फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इसमें आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी जस्टिफाई होगी, आपका बिजनेस प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन होगा। I love the answer, Dheeraj, because too much of expectations are a bigger failure in today's market of the ERP. I strongly echo you with that. Okay, one more question. Paper-based approvals or digital workflows? Digital workflows, sir. Paper workflows always takes time. So now this area is the quick decision. So I prefer to digitalization. Wonderful. And last question, AI or automation, which can impact manufacturing more over the next 5 years?
Is it AI, AI or automation? sir, automation is for first most, and then after AI. So can you just elaborate, sir? क्योंकि दुनिया पूरा एआई के पीछे भाग रहा है ना, आई तो कैन एआई या अंडरस्टैंड। ऑटोमेशन, व्हाट यू देखो, फील? तो सबसे पहले मेरा ऑटोमेशन होना चाहिए इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो हमें ह्यूमंस इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत होता है। जैसे जैसे क्यूसी का आप एग्जांपल ले लीजिए, है ना। मेरे पास कुछ कुछ सैंपल आते हैं, लेकिन मैं अपने आईक्यू से उसको, अगर वो मेरे पैरामीटर्स में नहीं है, तो मैं अपने आईक्यू से उसको जज कर सकता हूँ कि सर ये वाला आइटम तो अभी चल सकता है, क्योंकि हमें अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो मैं उसको पास कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी टूल या रोबोट से आप उसको करेंगे, तो रोबोट में जो आपने फीड किया हुआ है सिर्फ वही पास फेल करेगा, है ना। क्योंकि वो उसमें अपना कोई भी इंटेलिजेंसी नहीं है। जो आपने इंटेलिजेंसी उसको दिया है ना, और जितना दिया है, लिमिटेड इंटेलिजेंस दिया है, वो ही वो यूज़ कर पाएगा। तो इसलिए फर्स्ट take the automation, and then after AI. Wonderful, sir. Wonderful. So yes, thanks for this quick rapid fire round, Dheeraj ji. Welcome. And yes, let's see any questions from the audience. I'm waiting for your questions. Everyone, please paste your questions in the chat. We would love to answer. नीचे 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 आ रहा हूँ, बस मैं लेके आ जाओ। सर, मेरे बैग में रहता है, लेकिन वहाँ I'm not looking out any questions coming in. Hope Dheeraj ji आपने बहुत सारे insights दे चुके हैं कि there are no questions coming in. That's wonderful to look at, sir. अगर बाद में भी क्वेश्चन होते हैं So तो वो आपके थ्रू आ सकते हैं। yeah. Yes, sir. ऑलवेज Even we ऑलवेज are, वेलकम टू क्वेरी। we are always welcome. So yes, there is a question, sir. How we know which ERP is best? That's an interesting question from one of the audience. How can they understand which ERP suits them the best? देखो दिनेश जी, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता है कि आपको क्या क्या ईआरपी से एक्सपेक्टेशन है ना। आप क्रिस्टल क्लियर होकर बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप ईआरपी का डेमो देखो। इफ़ यू फाइंड दैट रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट, है ना, वो आपका बेस्ट है, वो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए। हर एक ईआरपी की अपनी यूएसपी होती है। कोई ईआरपी इन्वेंट्री में बहुत अच्छा फीचर्स है उसके पास, रिपोर्टिंग है, किसी में प्रोडक्शन के लिए है ना, कोई एससीएम के लिए भी है, कोई वेयर हाउस में है। लेकिन पहले आप देखिए कि आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो फुलफ़िल हो पा रही नहीं हो पा रही हैं, अलोंग विद द बजट, है ना। ये दो दो क्राइटेरिया जहाँ पर ये फुलफ़िल होंगे, आप उस ईआरपी पर जा सकते हैं। Perfect, sir. Perfect. होप आई So आंसर योर क्वेरी। yeah. So, sir, when you're talking about USP, I still feel people compare two systems, sir. When we talk about the best ERP to come in, so how do you handle such situations? Because people compare, ये इसमें नहीं है, ये feature नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. So we tend to hear a lot of stuff coming in, right? So what do you suggest in such cases? जैसे हम पहले भी हमने बात किया है कि हम जो अच्छा ईआरपी जो हम बोल सकते हैं, अभी जो दिनेश जी का क्वेश्चन था, है ना, तो वो तो इंटैक्ट रह गई कि मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होना चाहिए। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईआरपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, लीड मैनेजमेंट से लेकर आगे, है ना, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और आपका इनवाइसिंग तक, है ना। तो अगर आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पर अगर ये सारे ऐप्स मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो आपको लॉन्ग रन में ईआरपी हेल्प करेगा।
क्या होता है कार्तिक जी, है ना, ईआरपी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है कि मुझे मैं आज एक साल ये वाला ईआरपी यूज़ करूँगा, फिर अगले साल मैं दूसरा ईआरपी ले लूँगा। ईआरपी टेक्स टू मच ऑफ टाइम, टू मच टाइम ऑफ योर बिजनेस ओनर्स, देयर स्टेक देयर की यूज़र्स ऑल्सो, है ना। तो उसमें मुझे लेने से पहले सारी चीज़ें मुझे मुझे देखना चाहिए। और हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आप जो ईआरपी ले रहे हैं कम से कम ऐसा ईआरपी हो जो आपको 8 से 10 साल तक आपका साथ दे। इट्स लाइक ए मैरिज, है ना। अगर दोनों के अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, है ना, दोनों को वो अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये आपका ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, है ना। अदरवाइज अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, आप ईआरपी के बारे में नहीं जानते हो कितना उसमें पोटेंशियल है, और आप ईआरपी वाले को अपनी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से नहीं नहीं बता पाते हो, तो ये अल्टीमेटली आपका जो डिवोर्स पर ही जाकर ख़त्म होता है, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन फेल हो गया। Yeah. तो ये दोनों तरफ से अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आप कुछ इन कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, है ना, while you are going to purchase ERP, then surely it will go on success. Perfect. So continue to that footage. There is another question from one of the audience. ERP implementation करने के बाद भी की challenges क्यों आते हैं, स्पेशली एक्यूरेसी, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एंड एंड टू एंड स्टॉक विजिबिलिटी में ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी क्यों ये इश्यूज आते हैं? व्हाट इज योर आंसर, सर? हाँ, इसमें जैसे अभी हम इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, और इन्वेंट्री है भी बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट। जब हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है तो पहले एक डमी इन्वेंट्री के साथ स्टार्ट करते हैं, और जब हम गो लाइव पर जाते हैं, जब हमारा सारा ट्रेनिंग वाला पार्ट हो गया है, तब फिर हम एक जो फिजिकल इन्वेंट्री का स्टॉक टेकिंग कहते हैं उसको, स्टॉक टेकिंग हम करके लाते हैं। और जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, है ना, फॉर एग्जांपल मुझे अगर 1 अगस्त से मुझे अपना गो लाइव जाना है, गो लाइव मतलब मुझे रियल टाइम एंट्रीज करनी है, तो मेरी 30 जुलाई को क्या इन्वेंट्री है एग्जैक्ट, वो मुझे इनपुट में वहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस में मुझे मुझे डालनी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा बिजनेस तो कंटिन्यूस है, बिजनेस तो चल रहा है ना, इशू भी हो रहे हैं, इन्वेंट्री प्रोडक्शन में भी जा रहा है ना। तो मुझे उस समय मेरे पास कितना एक्यूरेट डेटा आया है, कितना स्क्रूटनाइज होकर सैनिटेशन के साथ मेरे पास डेटा आया है, ये डिपेंड करता है कि हाँ कितना आगे कितना डिफरेंस उसमें होगा। अगर आप एजम्पशन के बेस पर अगर इन्वेंट्री को इनपुट कर रहे हैं उसके बैलेंसेस को, तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर वो डिफरेंसेस उसमें आएंगे, है ना। तो उसको आपको मीटअप करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चूँकि मशीन है, मशीन में आप जैसा इनपुट डालोगे वैसे ही वो आपको आउटपुट देगा, है ना। ऑटोमेटिकली कहीं ऐसा ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर 10 क्वांटिटी किसी आइटम की डाली है और वो बाद में सिस्टम ने उसको 12 कर दिया, तो ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर ईआरपी नहीं करता है। ये ह्यूमन मिस्टेक ही हो सकती है। Great, sir. So as you have mentioned, it's purely upon a human intervention. That's the primary reason for the issues coming in, not by the system. That's great. So without delaying much, we have already consumed 10 more minutes additionally. So I would love to get into the closing ceremony for this. And today's discussion has highlighted something very important, I can say. Competing with larger manufacturing is not about having factories or bigger teams. It's having better visibility, I can say, or better planning, faster decisions, and connected departments. And again, with a discipline to use technology efficiently. So ERP is not just a software. It's a business transformation platform to help organizations to operate smarter and efficiently, I can say. So Yes. thank you so much, Dheeraj ji,
for sharing your valuable insights and practical experiences with us today. And thank you everyone who has joined us. We truly appreciate your participation and excellent questions coming in during the Q&A round. So Thank you. if today's discussion has inspired you to explore how ERP can help your organization become more efficient and competitive, we would be delighted to continue the conversation after this webinar. So on behalf of Target Integration, I thank you once again. We hope to see